Italy man, fancy guys, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, like on the band. I'm a motherfucking millionaire, foreign dicky, potent dinar, I get dirty money, super bar, direct, Kazani care. I'm a motherfucking millionaire, Italy made, fat cigar, look like a shade, chauffeur cars, tailor suits, like on the band. See, I'm a motherfucking millionaire. Pull it up, the current, I लगी हुई stocks तू रेड बुल नाल गला सिखंब लगे मेरे थॉट्स तू 10 साल हो गया जीवी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਨ ਚ ਮੈਂ rent free all dance rules ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਿੱਲੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹੋਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਈ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲਈ ਮਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੱਟ ਦੇ ਤੁਮੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ ਹਾਂ ਫੈਨ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕੋਈ ਤੋੜੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਕੱਟ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੋਈ only possible with your guitar, the spaceship, trip to Mars, the dog plane, banging the shit, flying kisses on from everywhere. It can be made, fat cigar, look like a shade, chocolate cars, little suits, like how they wear. I'm a motherfucking millionaire. What did they do? What did they not? I get dirty money. Super fast. One guy there. Kardani care. Shoot, I'm a motherfucking millionaire. Life studies, go to the racks, man, look at the money equal. Check your facts, man. I'm not there in the challenge and net to work. Only know what I'm going to get on the tax, man. Alpha, the sigma, the munda below me. On a new level, like a mental TV fail. I don't know where Chico Teeth Koi set it up. I'm the hype to her Tarata. I take chance on the dark, like a private. So, Chato Pan, on January, in the affair. Rhythm, fancy guy, look like a shake, chauffeur car, little suits, like 100 pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, what I did not, I get dirty money, super fast, what I did, nobody care. I'm a motherfucking millionaire. Italy made, fat cigar, look like a shake, chauffeur cars, little suits, like 100 pair. I'm a motherfucking millionaire. What did they do? What they did not, dirty money, super fast, only direct, nobody care. And these I'm a motherfucking millionaire. Yeah, baby. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द मैनिफेस्टेशन क्लासेस. हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, कैसे हैं? हाँ जी. हाय पलक, हाउ आर यू? हाँ जी, बताओ जी. आपके आपके मैजिक सुनने के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं. बताओ पलक, क्या मैजिक हुआ आपके साथ? हेलो मैम. हेलो जी. आप एकदम बढ़िया हूँ, मस्त मस्त और जबरदस्त भी हूँ बहुत बढ़िया. मैम. शेयरिंग सुनाओ मैम सबसे मैं पहले. मैं बहुत खुश हूँ. मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ. लाइक बहुत आपको बहुत फनी लगेगा बट मैं बताती हूँ. मैंने कल अपने रिलेटिव के घर गई थी आफ्टर एजेस. ओके. हाँ जी. एंड मैम वहाँ पे क्या हुआ ना, मेरे पास एक इयरिंग था विच आई परचेज लाइक 2022 में. ओके. इट इज माई फेवरेट इयरिंग, अभी तक भी वो मेरा फेवरेट इयरिंग है. हाँ जी. बट 2022 में मैम मैंने वो इयरिंग पहन के ना होली खेल लिया था. ओके. हाँ, एंड कलर उसमें चला गया कलर्स था. लग गए. हाँ हाँ. हम्म. एंड मैम मैंने फिर, वो मेरी फेवरेट इयरिंग थी तो मैंने उसको वॉश कर दिया, मतलब मैंने उसको वॉश किया था. बट व्हाट हैपेंड कि वॉश करते उसकी लाइक थोड़ी सी, मतलब जो प्रिंट शाइनिंग थी उतर ना वो गई, चली शाइन गई कम हो थी. गई. हम्म. हाँ हाँ. बट मैम आई स्टिल यूज टू वेयर दैट इयरिंग.
ओके। एंड देन व्हाट हैपेंड, मैं जब भी वो इयररिंग्स पहनती थी ना, तो आई वाज लाइक आई शुड बाय अ न्यू वन, मतलब सेम आई शुड बाय अ न्यू वन, आई शुड बाय अ न्यू वन, बट आई नेवर परचेज्ड। मैं वही इयररिंग्स पहनती रहती थी। एंड मैम कल मैं उन रिलेटिव के गई, एंड उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया इयररिंग का, एंड जब मैंने ओपन किया मैम, सेम इयररिंग वाज इन दैट बॉक्स। वाओ। वाओ। सेम इयररिंग मैम, सेम अमेजिंग कलर, सेम अमेजिंग डिजाइन। अमेजिंग। क्या बात है, क्या आई बात है, वाज बिल्कुल सो सेम। हैप्पी। एकदम सेम मैम, आई विल शेयर यू द पिक्चर, जो मेरे पास जो इयररिंग है एंड कल उन्होंने जो मुझे गिफ्ट किया है, मैं हाँ। सेम, एकदम सेम। आई वाज सो हैप्पी। हैप्पी एंड शॉक्ड। क्या बात एग्जैक्टली है, मैम, देखा सो आपने अपने, शॉक्ड। आपने अपने सोर्स रिलेशनशिप का थैंक यू किया, शुक्राना किया, तो समवेयर किसी फीमेल ने आपको लाके आपकी मनचाही चीज दे दी। एग्जैक्टली मैम, Amazing. एग्जैक्टली। एंड मैम, So proud of लाइक आपने फर्स्ट क्लास में बोला था ना, फॉर होम, लाइक कि आप चाहते हो आपका अपना घर हो, you. पर आप चाहते हो अपने पैसे से। आप ऐसा क्यों चाह रहे हो? आप सोचो कि कोई गिफ्ट कर दे आपको, हाँ। कोई आपको गिफ्ट भी तो कर सकते हैं। एंड मैम बिल्कुल। वही चीज मेरे साथ हो गया बहुत कि मैंने बढ़िया, चाहा कि बहुत मैं खुद बढ़िया। लूं, बट मुझे बहुत तो किसी बढ़िया। ने गिफ्ट भी कर दिया। सही बात है, और क्या, देखो बहुत अच्छा चाहना ही लग तो रहा होता है। है हमें। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, अमेजिंग, यू हैव डन अमेजिंग प्रैक्टिस। सो यस मैम। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है सबके लिए। रियली नाइस एंड रियली हैप्पी टू हियर इट। प्रैक्टिस करते रहो और मजे करो। बहुत बढ़िया है। चलो श्योर आते श्योर हैं हम मैम। आज की प्रैक्टिस पे आते हैं। लेट्स डू सम ग्रैटिट्यूड्स फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, आ जाओ सब लोग मिलके। सब लोग सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि सब लोग अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, अपनी हेल्थ से कितना प्यार करते हैं, अपनी बॉडी से कितना प्यार करते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके दिव्या जी, आप बोल रहे हो अलॉट। अलॉट का क्या डेफिनेशन है फॉर यू? Yes, we do neglect. Sometime we neglect too. Yes. Just started taking care of my health. Okay. Okay, so basically, very nice if your health is priority. Very good. बट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपने बॉडी को लेके कंप्लेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है? एंड आई वांट एवरीवन टू राइट इट डाउन समथिंग। एक फॉर्मूला मैं सबको लिखवाती हूँ, और आप सब लोग वो फॉर्मूला लिख लीजिए अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो। वेरी नाइस खुशबू जी, वेरी नाइस, अमेजिंग। ओके। यूजुअली बहुत सारे लोगों ने अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया होता है, तो उनके साथ लाइफ में आगे जाके हेल्थ चैलेंज आते हैं जो उनको यू नो अच्छा फील नहीं करने देते हैं। लाइफ में बीमारियां आ जाती हैं, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है। तो लेट मी राइट डाउन अ वेरी अमेजिंग लाइन फॉर यू गाइस। और इसको तो ना आप अपनी क्रिएटिविटी करके इसको कहीं रूम में लगा सकते हो ना, तो लगा लो। When we are grateful, we receive we receive, आप इनको इतने आगे, we receive abundance,
we receive abundance. abundance का मतलब होता है भरपूरियत। ठीक है, जब हम ग्रेटफुल होंगे, ग्रेटफुल मतलब शुक्राने में होंगे, तो हमें क्या मिलेगी? abundance मिलेगी। I hope you guys are writing. When we are grateful, we receive abundance. When when we are ungrateful, whatever we have will go away. ओके, एक सेकेंड, इसको हम करते हैं मार्क। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सिर्फ हेल्थ के केस में नहीं जाएगा, ये रिलेशनशिप के केस में भी जाएगा, ये आ, हमारा उसमें भी जाएगा, क्या नाम है, मनी में भी जाएगा, हमारे डिजायर्स में भी जाएगा, सब में ये फॉर्मूला जाएगा। व्हेन वी आर ग्रेटफुल, वी रिसीव abundance. व्हेन वी आर अनग्रेटफुल, अब आप कहोगे यार हम अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं? अनग्रेटफुल मतलब होना, मतलब कि अगर आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, अक्सर आप अच्छी बातें करते हो, है ना, अच्छी बातें बोलते हो, तो इसका मतलब आप ग्रेटफुल हो। लेकिन अगर आप चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, मैं आपको बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल बताती हूँ मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड का बहुत लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ। अब जैसे उनका फोन है ना, अब उनका फोन ना 2 दिन से उनको चैलेंज दिखा रहा है, उनको प्रॉब्लम दिखा रहा है, थोड़ा ड्रामा कर रहा है, ठीक हो जाएगा वो, लेकिन तो मैंने कहा आप इसको कभी ग्रेटफुल तो होते नहीं हो। तो मेरे हस्बैंड बोले इसको क्या ग्रेटफुल हो? तो मैंने कहा आपको भी बोलते हो मेरे प्यारे फोन, तू मेरा कितना सारा ध्यान करता है ना, मैं तेरी वजह से कितना बिजनेस करता हूँ, मैं अपना सोशल मीडिया चलाता हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट होता है, मेरा पूरा सब कुछ, मतलब लाइफ का आपका सब कुछ फोन के ऊपर बेस्ड है। अभी आप क्लास ले रहे हो किसकी वजह से? फोन की वजह से। तो मैंने कहा आप कभी अपने फोन को थैंक यू बोलते हो? तो कहते नहीं यार। मैंने कहा ऊपर से, क्योंकि वो ना बहुत बार ऐसे मजाक में बोलते हैं, अरे ये तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया है, मैं कोई बात नहीं, मेरे लिए दूसरा आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए तो बड़ी अच्छी बात बोल दी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनका करंट फोन है उसको उसको ना बुरा फील करवा दिया, उसके लिए फॉर ग्रांटेड हो गए, है ना, फॉर ग्रांटेड लेना, जैसे हम किसी इंसान को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन्होंने फोन को ना फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब क्योंकि वो इतने टाइम से उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो उनके फोन ने भी नखरे करने स्टार्ट कर दिए। दिस इज हाउ इट हैपेंस, कि जब हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेके अनग्रेटफुल होते हैं, या उस चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या उसको थैंक यू नहीं बोल पाते हैं, या उसको अच्छी बातें नहीं कह पाते हैं, उसको शुक्राना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में उस चीज को की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अगर वो पैसा है तो वो पैसा कम होने लग जाएगा, हमारे पास कर्जे आने लग जाएंगे, हमारे पास बैंकरप्सी, है ना, प्रॉब्लम्स, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैसों का खो जाना, पैसे चले जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। ऐसे ही सेम हेल्थ में भी होता है। ये जो इतना सुंदर शरीर हमें भगवान ने, यूनिवर्स ने गिफ्ट किया है ना, गिफ्ट ही तो है ये हमें। जब हम इसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब हम थैंकफुल होते हैं, हर रोज हम अपने एक एक बॉडी पार्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो हमें इन बॉडी पार्ट्स में अबंडेंस मिलती है। लेकिन जब हम इनको लेके अनग्रेटफुल होते हैं, अब आप कहोगे यार मैं थोड़ी ना अपनी बॉडी को गाली देती हूँ, मैं थोड़ी ना अपने बॉडी को हरास करता हूँ या फॉर ग्रांटेड लेता हूँ। नहीं, हम करते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट ना खा के मैदा खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कोई अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखा हुआ, ठीक है, हमें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज,
अपनी बॉडी को एक अच्छी मूवमेंट वॉक देने की जरूरत है, लेकिन हम हर वक्त बेड पे पसरे रहते हैं एसी चला के। कोई मूवमेंट नहीं है, कोई योगा नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं है। दिस इज बीइंग अनग्रेटफुल टू योर बॉडी। फिर एक टाइम आता है आपकी बॉडी आपको अलार्म देने लग जाती है कि भाई उसके अंदर छोटी छोटी आपको चैलेंजेस नजर आने आने लग जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियां नजर आने लग जाती हैं। और वहीं पे आपकी बॉडी आपको दिखाने लग जाती है कि बेटा इसका ध्यान रखो, ये गिफ्ट मिला है आपको यूनिवर्स का। क्योंकि जब आप इसका ध्यान रखना छोड़ते हो, इसमें धीरे 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 प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ये सिर्फ हमारा मिथ है कि एक एज के बाद हमें तो मोटा होना ही है, एक एज के बाद तो हमें बूढ़ा होना ही है। आपने अगर मिल्खा सिंह को देखा हो, मिल्खा सिंह 78 80s की एज में कैसे अभी भी मैराथन दौड़ सकते हैं? क्यों? ऐसा तो कुछ और, उनके पास भी दो टांगे हैं जैसे हमारे पास है, उनके पास भी दो हाथ हैं, उनके पास भी एक बॉडी है जैसी हमारी है। सेम फंक्शन उनको दिए हैं जो हमें दिए हैं। वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे? क्या आपके पास इस चीज का आंसर है गाइस? हम लोग क्या करते हैं, बीइंग अ मदर, स्पेशली वुमेन्स ऐसा ऐसा बहुत करती हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए जो उन्हें पसंद है वो बना देंगी, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो बना देंगी। कभी अपनी हेल्थ के लिए नहीं देखेंगी कि यार मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पसंद है, या मेरे शरीर को किस चीज की जरूरत है। दिस इज बीइंग अनग्रेटफुल। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? कि अनग्रेटफुल होना क्या होता है अपनी हेल्थ की तरफ। ठीक है, आपकी हेल्थ जब तक अच्छी चल रही थी, जब तक बढ़िया चल रही थी, आपके हाथ पैरों ने बहुत अच्छा काम किया। आपने कभी किसी को नहीं बोला यार मेरे हाथ पैर तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, यार मेरी आंखें तो ना बहुत तेज हैं, दूर का देख लेती हैं, यार मेरे कान मेरे कान तो बहुत बढ़िया हैं, एक एक बारीक सी आवाज सुन लेते हैं, यार मेरी नोज बड़ी अच्छी है ना, कोई भी हल्की सी स्मेल हो मुझे आ जाती है, कोई भी हल्की सी फ्रेग्रेंस हो मुझे याद रहती है, यार मेरी टंग बहुत अच्छी है, कितनी सुंदर आवाज है मेरी। कभी हमने इसकी तारीफ नहीं करी, कभी हमने अपनी बॉडी को नहीं बोला। और लेकिन जैसे ही इसमें कोई चैलेंज आता है, जैसे ही इसमें कोई ब्रेकडाउन आता है, जैसे ही इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम तो भैया सबको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, हे राम मैं तो मर गई, मैं तो पैर टूट गया, मेरा घुटना टूट गया, मेरी कमर में ब्रेकडाउन आ गया, मेरी मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया, मेरे को शुगर हो गई, सब कुछ आके बताते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लेंट करना। कि जब मैं सही चल रही थी तब तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम आई मैंने इसके बारे में और ज्यादा कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? क्या हम सब ऐसा करते हैं कि जब हम ठीक थे, जब हम बीमार नहीं थे, जब हमें कोई बुखार नहीं था, हम कभी अपनी बॉडी को नहीं बोला यार तू कितना, मतलब मेरी प्यारी बॉडी तू कितनी प्यारी है, कि तू दिन रात काम करती है इतनी एनर्जी से, तूने पॉडकास्ट भी कर लिया, तूने क्लासेस भी दे ली, तू दिन में चार चार क्लासेस देती है ना, तू खाना भी बना लेती है, तू जिसको जो फेवरेट है वो भी कर लेती है, आजकल तो तू इंटीरियर डिजाइनिंग की वो शॉपिंग भी कर रही है अपने घर के लिए, मतलब कितनी एनर्जी है तेरे अंदर। उसके बाद रात को कितने प्यार से सोती है, उसके बाद सुबह टाइम से उठ भी जाती है, टाइम से सो जाती है, क्या बात है यार, मतलब तू कितनी अच्छी है मेरी बॉडी। लेकिन अगर अभी हल्का सा मुझे फीवर आ जाए तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी, मतलब मैं जनरल बता रही हूँ, अभी मैं परेशान नहीं होती हूँ एज अ टीचर मैं, है ना, हम सब परेशान हो जाते हैं, हल्का सा कोल्ड फीवर हो जाए, दुखी होके पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा देते हैं। ऐसा कौन कौन करता है? प्लीज रेज योर हैंड। कौन कौन करता है ऐसा कि हल्का सा परेशान हुए और हम लोगों ने अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में कंप्लेन करना शुरू कर दिया? जब हम पतले थे, जब हम स्लिम ट्रिम थे, जब हमारी बॉडी इतनी सुंदर थी, तब हमने कभी अपनी बॉडी को अप्रिशिएट नहीं किया। हमने कहा ओह ये तो मेरा कमाल है
है ना। हमने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन अब अगर मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया, अगर मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, जो कि गलती भी मेरी ही है शायद, तो मैं कंप्लेन्स पे कंप्लेन्स किए जा रही हूँ। कपड़े पहनती हूँ तो कंप्लेंट कर देती हूँ, हाय मोटी होती जा रही हूँ, कुछ फिट नहीं होता है, ठीक है। कोई मिला, किसी ने हल्का सा कुछ बोल दिया और कंप्लेन्स करने लग गई। खुद भी कंप्लेन्स कर रही हूँ, दूसरों से भी कंप्लेन्स करवा रही हूँ। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप एक तो कंप्लेंट करके अनग्रेटफुल हो रहे हो, और जो आपकी सिचुएशन है, आप उससे और वर्स्ट 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 जाते जा रहे हो। तो आई थिंक आपको ग्रैटिट्यूड और कंप्लेंट का रिलेशनशिप समझ आ गया होगा हेल्थ के केस में, कि ग्रेटफुल होगे तो जो सिचुएशन है उससे बेटर हो जाएगी, लेकिन अगर अनग्रेटफुल हो, कंप्लेंट्स करते हो, बॉडी को, हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ जो है वो वर्स्ट की तरफ जाती जाएगी। अब ग्रैटिट्यूड्स कैसे लिखते हैं हेल्थ के, ठीक है, सब मुझे बताएंगे। सबके पास बॉडी पार्ट्स में क्या बढ़िया बढ़िया है ना, तारीफें लिखनी है अपनी बॉडी की। आपने कभी अपने प्यारे हार्ट के बारे में सोचा है, दिल के बारे में, कि यार कितना परफेक्ट है, देखो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको क्लास दे रही हूँ, मैंने तो अपने दिल को नहीं बोला ना कि तू पीछे से बीट करता रहे। मैं बात कर रही हूँ बट फिर भी मेरी सांसें परफेक्टली इक्वल सीक्वेंस में चल रही हैं। कभी मैंने अपने लंग्स को थैंक यू बोला? कभी अपने ब्रीदिंग सिस्टम को थैंक यू बोला? आज हम इन सब चीजों को थैंक यू बोलेंगे, इन सब चीजों को थैंक यू बोलेंगे। हाँ जी। आपने, यस, जिसको लगता है उसकी आईज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर है, वो अपनी आईज को लेके ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। सपोज चलो आईज का एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम थैंकफुल दैट आई गॉट ऑल माई बॉडी वर्किंग इन देयर बेस्ट कैपेसिटी। यस, ठीक है, लैंग्वेज कुछ ऐसी रहेगी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटिफुल। अब आंखों के ऊपर ही ना आप एन नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज मैं इससे अपने लव्ड वंस को देख पाती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज, मैं इसकी वजह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, या मेरी लाइफ बहुत इंडिपेंडेंट है। आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज कि मैं अपने सारे काम खुद कर पाती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज कि मैं ये क्लास ले पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, जो भी सामने लिखा है सब कुछ खुद से पढ़ पा रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज कि वो मुझे कितने सुंदर सुंदर कलर्स दिखाती है। आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज, जब भी कभी आप रेनबो देखो, पिकॉक देखो, बटरफ्लाई देखो, कितनी खुशी होती है देख के। आंखें नहीं होती तो कैसे देखते। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज कि वो मुझे इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाती है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, अभी 2-3 दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद एक टूटता हुआ तारा देखा। बिकॉज वो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वो ऐसे करके कुछ हुआ, जैसे कोई फायर वर्क होता है। पहले तो मुझे लगा शायद कोई फायर वर्क होगा, बट वो फायर वर्क नहीं था, बट वो एक्चुअल में कोई टूटता हुआ तारा था, और सिर्फ मुझे दिखा। मतलब मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे थे, उन्होंने नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा। मैंने कहा वाह, ये मेरी विश थी कि मैं लाइफ में कभी भी एक टूटता हुआ तारा जरूर देखूं। एंड मैंने वो देखा। किसकी वजह से? मेरी सुंदर आंखों की वजह से। तो जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने बोला मेरी प्यारी प्यारी सुंदर आंखें, तेरा बहुत शुक्रिया अदा कि तूने मेरी ये ड्रीम, मेरी ये विश पूरी की। क्योंकि आंखें नहीं होती तो कैसे देख पाती उसको। आर यू गाइस क्लियर? क्या आप लोग साइड बाय साइड लिख रहे हैं?
आप लोग इंटरेक्ट करते रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा मुझे। सी पलक ने तो हमें बहुत अच्छी शेयरिंग सुना दी है। सिर्फ 2 दिन की सेशन में शी हैव सीन द मैजिक, दैट शी हैव रिसीव्ड द अमेजिंग पीस ऑफ ज्वेलरी जो उसको खरीदनी थी, और वो उसके किसी रिलेटिव ने एग्जैक्ट सेम डिजाइन, एग्जैक्ट सेम चीज उसको गिफ्ट किया। पलक जरूर मुझे इसकी पिक्चर शेयर करना, सो दैट वी कैन पुट इट ऑन आवर यू नो यूट्यूब और द शेयरिंग एरिया। ऐसी छोटे छोटे मैजिक्स, छोटी छोटी शेयरिंग्स आपकी लाइफ में होती रहनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसे मैजिक्स नहीं हो रहे हैं, है ना, कोई कुछ वंडरफुल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपके ग्रैटिट्यूड में, आपके थैंकफुल होने में। अब हम ना हेड टू टो जाएंगे, और हेड टू टो यू नो सारी चीजों का ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। मैं अभी आपको एक एक ग्रैटिट्यूड लिखवाऊंगी, और आप सब लोग बाद में उन सब चीजों पे 5 5 6 6 ग्रैटिट्यूड्स अपने आप लिखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम हमारे बालों पे। ठीक है, किसी के बाल कम हो ज्यादा हो, प्लीज ऐसा मत सोचना कि अरे यार आई हैव लेस हेयर, मेरे में तो कम बाल हैं, तो मैं इनका क्या ग्रैटिट्यूड लिखूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहले मेरे बाल बहुत हल्के, बहुत लाइट और बहुत कम लगते थे, तो मुझे समझ आया कि मेरी ही वजह से ये कम हो रहे थे, क्योंकि बचपन से लेके मैंने अपनी मम्मी को बहुत कंप्लेंट की थी अपने बालों को लेके। क्या यार मम्मी, मेरे ही बाल आपने छोटे रखे, मेरे बाल कटवा देते हो, मेरे बाल सुंदर नहीं है। आई ऑलवेज यूज टू से टू माई मॉम, यार आपने चेरी, मेरी सिस्टर का नाम चेरी है, यार आपने चेरी को 2 बार हेड शेव करा दिया, उसके बाल तो थिक आए हैं, उसके तो स्ट्रॉन्ग बाल हैं, मेरे क्यों नहीं है। और मैंने बचपन से इस बात को लेके इतना कंप्लेंट किया था, इतना कंप्लेंट किया था, कि कहीं ना कहीं वो अफेक्ट मेरी लाइफ में मेरे बालों पे नजर आया। तो अब अगर मैं अपने बालों को स्ट्रॉन्ग चाहती हूँ, स्ट्रेंथ चाहती हूँ, लेंथ चाहती हूँ, तो मैं अपने बालों को लेके तब तक ग्रैटिट्यूड लिखूंगी जब तक मेरे बालों में मुझे वो रिजल्ट नजर ना आने लग जाए। और बालों को लेके कैसे ग्रैटिट्यूड लिखेंगे? आई एम सो ग्रेटफुल टू माई हेयर, मैं अपने बालों को के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा आराम से। ओके, आई एम सो ग्रेटफुल। सबसे पहले आते हैं हमारे बाल। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेयर। अब आप लोग अपनी अपनी क्वालिटी ना चैट बॉक्स में लिखते जाओ, आपको अपने बालों की क्या क्वालिटी। किसी के कर्ली बाल हो सकते हैं, है ना, किसी के लंबे हो सकते हैं, किसी के बाल गोल्डन कलर के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आई एम ग्रेटफुल, अपने बालों की कोई भी अच्छी तारीफ लिख दीजिए प्लीज। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, मैं लिखूंगी कि मैं अपने बालों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये चाहे जैसी भी लेंथ के हो, लेकिन जब इनमें स्टाइलिंग होती है तो बहुत सुंदर लगते हैं। हेयर एक्सटेंशंस लगा के, कर्ल्स करके, स्ट्रेट करके, हेयर स्टाइलिंग करके मैं बहुत सुंदर फील करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मैं इन प्यारे प्यारे बालों के लिए बहुत शुक्रगुजार फील करती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, लुक्स ग्रेट इन एवरी स्टाइल, यस। सॉरी। My hair looks amazing in every hair style। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लिटरली पता है कैसे होते हैं, उनको भगवान ने इतने लंबे लंबे बाल दिए होंगे, है ना, उनको भगवान ने इतनी बड़ी नियामत दी है, जिसके लिए मेरे जैसे लोग तरस रहे हैं, उनको मिली होती है, और वो लोग कहते हैं अरे क्या फायदा इतने लंबे बालों का, बेकार है ये तो, कटवा दूंगी इनको तो मैं। और जब भी वो ऐसी कंप्लेन्स बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत बार करते हैं,
तो उनकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंस एक दिन जरूर आता है जो उनको अपने बाल कटवाने पड़े। अमेजिंग अमेजिंग। नो मैटर व्हाट, इफ यू हैव, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी बालों के ऊपर, जो मुझे एक हेयर ड्रेसर ने समझाया था। जैसे यू कैन सी दिस पार्ट। तो जैसे मेरा ना यहाँ पर थोड़ा एक गैप आने लग गया था, जैसे यूजुअली एक होता हो जाता है, अगर कभी होता है तो मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास गई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया देखना यहाँ से ना बाल कम हो रहे हैं, प्लीज आप बताओ, आप कुछ कर सकते हो इसके बारे में। तो उसने बोला मैम ये आपकी ग्रोथ है, मैं इसको लेके कुछ नहीं कर सकता। तो उसने मेरे को बोला कि मैम मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाता हूँ, कि जहां आपका फोकस रहेगा ना, आप अगर रोज अपने बालों को शीशे में जा जाके देख रहे हो, अरे ये तो कम हो रहे हैं, अरे ये तो कम हो रहे हैं, अब आपके दिमाग में क्या जा रहा है बार बार कि ये तो कम हो रहे हैं, ये तो कम हो रहे हैं। उसने बोला मैम अपने बालों को ना देखना छोड़ दो, शीशा ही मत देखो, क्योंकि शीशा देखोगे तो ध्यान यहाँ आ जाएगा। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, शादी से कुछ दिन पहले का ये इंसिडेंस है, कि मेरी शादी 2023 सितंबर में हुई थी, और मैंने उस हेयर ड्रेसर को मई में बोला था कि भैया ये बाल ना यहाँ से बड़े कम नजर आ रहे हैं, प्लीज आप इनको लेके कुछ करो। तो उन्होंने बोला मैम आप अपना फोकस यहाँ से हटा लो, आप देखना आपके बाल अपने आप ग्रो होने लग जाएंगे। लिटरली मैंने ये किया, और आप बहुत विजिबली आराम से देख सकते हो, मैंने कोई कॉम वॉम कुछ भी नहीं किया हुआ है। यू कैन सी कि ये एरिया कंप्लीटली फुल है। अब अगर मैं अपना फोकस यहीं पे रखती और बार बार कंप्लेंट किए जाती कि अरे नहीं यार ये तो कम हो रहे हैं, ये तो कम हो रहे हैं, मेरे बाल तो वैसे इतने हल्के हैं, अगर मैं बार बार उस चीज को लेके कंप्लेंट करूंगी, तो जितने इस इन्होंने क्या बोला था, व्हेन वी आर अनग्रेटफुल वट एवर वी हैव विल बी टेकन अवे। जब हम शुक्रगुजार नहीं होंगे, जितना है उतना भी चला जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोला। क्लियर टू एवरीवन? जब शुक्रगुजार होंगे तो ये भी बढ़ जाएंगे, और जब अनग्रेटफुल होंगी, कंप्लेंट करूंगी इनके बारे में, जाने अनजाने में गलत बात बोल दूंगी, तो जितने ये हैं ये भी चले जाएंगे। ठीक है, अब हमने बालों का ग्रैटिट्यूड लिख लिया है। ऐसे ही आपको होमवर्क में आराम से बैठ के 5 6 10 जितने भी ग्रैटिट्यूड आप लिखना चाहते हो, जिस भी एरिया में आप अमेजिंग मैजिक चाहते हो, लिखो। तब तक लिखो जब तक यहाँ पे मैजिक नजर ना आने लग जाए। अब आते हैं हमारे बालों के बाद आते हैं हमारी आईज पे। ठीक है, आईज के लिए लिखेंगे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आईज। बताओ आंख, आप अपनी आंखों के लिए क्यों ग्रेटफुल फील करते हो? मैं तो बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट काम है आप लोगों को ग्रैटिट्यूड सिखाना और पढ़ाना, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस लेके आना। ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, मेरा मिशन है ये, कि मुझे सबकी लाइफ में चेंजेस लेकर आने हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करता है इस चीज़ में। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज। यस, योर आईज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, वी कैन सी द वर्ल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम अपने लव्ड वंस को देख सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन आई कैन सी माई लव्ड वंस। सोचो अपनों को देख ही ना पाते तो कैसा ही लगता। यू कैन सी द वर्ल्ड, लेकिन आप इसको डीपली ग्रैटिट्यूड करो, अपनी आंखों को बताओ। और स्पेशली जिनको जिनको पास का दूर का नहीं दिखता है, नंबर खराब है, कैटरैक्ट इशू है ना, कोई भी आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको तो ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही अनग्रेटफुलनेस की है जो उनके आंखों में ये ब्रेकडाउन्स आते हैं। आई होप यू गाइज आर गेटिंग। I have dark circles, but my eyes are really attractive, as everyone says so. I always say I have smoky eyes. God has given me permanent makeup for my eyes, and my cheeks are so
more fair. That's why it'll look darker. I'm really blessed to have such eyes. God bless you, Meenakshi ji. I'm sure you have beautiful face, beautiful eyes. लेकिन एक छोटा सा करेक्शन आपका ये रहेगा कि जब भी आप डिस्क्राइब करो अपनी आईज को, है ना, तो नेक्स्ट टाइम से डार्क सर्कल्स को साइड में रख दो, क्योंकि आपका फोकस आपके डार्क, मेरे से ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। मेरे पहले इतने गहरे गहरे डार्क सर्कल्स होते थे, लिटरली ये दिस एरिया यूज टू लुक ब्राउन। और आप देख पा रहे, आई डोंट हैव एनी सिंगल मेकअप, नो फाउंडेशन, नो मेकअप। ये एरिया बहुत डार्क हो जाता था, और अभी भी अगर मैं ना सोऊं या बहुत स्ट्रेस में हो जाऊं, तो कहीं ना कहीं मेरे ये डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं। तो फोकस करो, जब भी आईज के बारे में लिखो तो इतना अच्छा लिखो, डार्क सर्कल्स को साइड में फोकस करो, सिर्फ आईज पे। आईज के आसपास क्या हो रहा है उस पर फोकस ही मत करो। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इस चीज से को बेटर करना चाहते हो, अपनी आंखों देखो कि मैं लिख पा रही हूँ, मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, मैं मूवी देखती हूँ, है ना, मैं लिख पाती हूँ, मैं अपना होमवर्क कर पाती हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लोग तो बोल देते हैं। कुछ भी मत फील करो, बात इग्नोर करो। जब तक एक दो बार इग्नोर नहीं करोगे ना, तब तक खुद को इग्नोर करने की आदत नहीं आएगी। खुद का फोकस उस जगह पे इसलिए जा चुका है क्योंकि दूसरे बोलते थे और हमारा ध्यान भी उस जगह पे चला जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मुझे देख के शायद आपको कभी लगेगा नहीं कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने थे। ठीक है, यहाँ पे आई हैव फ्यू पीपल जो मुझे बचपन से जानते हैं, तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने थे, और कोई भी जब मुझे मिलता था ना, और मिलते मुझे सबसे पहले बोलता था, अरे ये इतने पिंपल्स हो रहे हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो। और इस वजह से मुझे किसी भी फंक्शन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी से मिलने में ना अच्छा नहीं फील होता था। तो मैंने नोटिस किया जब मैं इस जर्नी पे आई, इस जर्नी तक भी बहुत एक्ने होते थे, बहुत डॉक्टर चेंज किए, सब कुछ किया। फिर मैंने ना सोच लिया, मैंने कहा ठीक है यार, अब ऐसे है जैसे भी है। तो जब मेरे को पता चला कि यार मेरा तो फोकस ही इन्हीं पे था, कोई बोल देता था मुझे कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मैं तो और ज्यादा ध्यान देने लग जाती थी इस चीज के ऊपर। तो आपका ध्यान आपके डार्क सर्कल्स पे है, इसलिए वो अब तक है। अगर आपका ध्यान चला जाता, है ना, कुछ टाइम के लिए अगर आप उस चीज पे से अपना ध्यान हटा लो, तो वो डार्क सर्कल जैसे गायब हो जाएंगे। आपको मेरे फेस को देख के कहीं से भी फील हो रहा है कि मुझे एक्ने, डार्क सर्कल्स या ऐसा कोई भी इशू होगा? I do all my paintwork and sketching as I am artist. Yes, amazing. Wow. अपनी आंखों की इतनी तारीफ करो कि आंखें भी सोचे कि वाओ, किसके पास आई हूँ। यार लाइट चली गई क्या? आप लोग अपनी अपनी नोज के लिए कैसे ग्रेटफुल हो? हाउ यू गाइज आर ग्रेटफुल फॉर योर नोज? हमें कितनी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस पता चलती है, हम लोग कितनी अच्छी अच्छी स्मेल, वो स्मेल कह रही हूँ, सॉरी, कितने अच्छे अच्छे परफ्यूम्स लगा पाते हैं, हम रोज को स्मेल कर पाते हैं।
आई डोंट नो, मैंने शायद कोई, हाँ अब आ रही होगी मेरी आवाज, आई गेस। हम्म। सो अब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं अपनी नोज का। ठीक है, कैसे हम अपने बच्चों की फ्रेग्रेंस याद रखते हैं, कैसे हम अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की, अपने मम्मी पापा की बॉडी ओडोर को, है ना, कभी आप उनकी शर्ट स्मेल करके देखना, आपको पता लग, कैसे हमें अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की, अपनी लव्ड वंस की, है ना, कोई कोई हमारे रिलेटिव स्पेसिफिक परफ्यूम लगाते हैं और हमें वो याद रहता है कि यार ये वाला परफ्यूम तो वही पर्सन लगाता है। हमें हमारी फेवरेट चॉकलेट्स की, किसी को पूजा पाठ करना बहुत पसंद है तो अगरबत्ती की, मिट्टी की खुशबू, है ना, बारिश होती है तो कितनी अमेजिंग लगती है हमें मिट्टी की खुशबू। चाय परफेक्ट बनी है या नहीं, कैसे पता लगता है, उसकी खुशबू से पता लगता है। हम कभी भी चाय टेस्ट तो करते नहीं है पहले। आर यू गाइस काइंड ऑफ रिलेटिंग इट? आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? बट हमने अपनी प्यारी सी नोज को ना कभी भी थैंक यू नहीं बोला, बट जब कोविड में, जिस जिसको भी कोविड हुआ होगा उसको पता चला होगा कि हमारी स्मेल और हमारे टेस्ट चला गया था। लिटरली मैं ऐसे लग रहा था कि परफ्यूम लगा रही हूँ लेकिन स्मेल क्यों नहीं आ रही। तब उस दिन अहमियत पता चली थी कि नोज कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखो, अगर आप इमेजिन करो आपके फेस पे, नोज डाउन, आपका फेस कैसा लगेगा? इमेजिन योर सेल्फ विदाउट अ नोज। किसी किसी की नोज कितनी सुंदर होती है, शार्प होती है, परफेक्टली मेड होती है। दे कैन राइट इट डाउन कि मेरी नोज मेरे फेस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई नोज, क्योंकि वो मेरे फेस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। आप इसमें ज्वेलरी पहन सकते हो, अलग अलग तरीके के नोज रिंग्स पहन सकते हो, अलग अलग तरीके के स्टड्स पहन सकते हो। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने लिप्स पे या टंग पे या टीथ पे। हम अपने मम्मी के खाने को याद कैसे रखते हैं? बिकॉज ऑफ आवर टंग। कैसे हमें अपनी मम्मी का फेवरेट बनाया हुआ खाना जिंदगी भर याद रहता है? कैसे हमें लाइफ टाइम अपनी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ हर एक टेस्ट याद रहता है? किस किस को अपने मम्मी के हाथ की बनाई हुई क्या क्या चीज याद है? अपनी टंग को आज उसके उस चीज से ग्रैटिट्यूड लिखना है। बेस्ट हलवा। माय मॉम मेक्स अमेजिंग साउथ इंडियन फूड, वाओ। अब आपको कैसे पता चला कि आपकी मम्मी खाना अच्छा बनाती हैं? बिकॉज ऑफ योर टंग। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर टंग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आई एम ग्रेटफुल टू माई टंग। टंग, बिकॉज मेरी टंग मुझे अच्छा खाना खाने में हेल्प
करती है। जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, स्पेशली द सिंगर्स, दे कैन राइट देयर अमेजिंग ग्रैटिट्यूड फॉर देयर वॉइस। कुछ लोग कितना सॉफ्ट, कितना मीठा, कितना प्यारा बोलते हैं ना। मैं आपको क्लास दे पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ माई टंग। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू माई टंग, बिकॉज मैं ये क्लास होस्ट कर पा रही हूँ, आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज दे पा रही हूँ। आप लोग अपने अपने बिजनेस रन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर टंग। कितना महत्वपूर्ण, मतलब हमारे पास ये गिफ्ट है यूनिवर्स ने जो हमें दिया है, इसके बिना तो हम अपने बिजनेस को भी प्रमोट नहीं कर सकते। इसके बिना तो हम लोग अपने बिजनेस को भी प्रमोट नहीं कर सकते। आप कम्युनिकेशन कर पाते हो, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हो, जता पाते हो, किसकी वजह से? अपनी टंग की वजह से। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट मल्टीपल ग्रैटिट्यूड्स फॉर योर टंग। अगर आपको गला खराब हो जाता है, बोलने में दिक्कत आती है, या टेस्ट की वजह से कुछ गड़बड़, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको अपनी टंग को ग्रैटिट्यूड जरूर देना चाहिए। देन हम लोग ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं अपने लिप्स को, है ना। किसी किसी के लिप्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिपस्टिक लगाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, हमारे फेस को कितना सुंदर एक्सप्रेशन मिलता है हमारे लिप्स की वजह से। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे, इतने सुंदर लिप्स देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लिप्स बिकॉज इनकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है। कितनी बार लोग मुझसे पूछ लेते हैं, आपने आपने प्लम तो नहीं कराए हुए, आपने अपने लिप्स पे कोई सर्जरी तो नहीं कराई हुई? तो मैं ऐसे बोलती हूँ, नहीं भाई, कोई सर्जरी नहीं कराई है, ये नेचुरली इतने प्लम्ड है। सोचो ये लिप्स नहीं होते, तुम्हारा फेस कैसा लगता? किसी किसी के लिप्स में बाय बर्थ कट्स लगे होते हैं, है ना, परफेक्ट शेप नहीं होती, वियर्ड होती है। उन लोगों से पूछो अच्छे लिप्स, परफेक्ट लिप्स की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद आते हैं हम हमारे शोल्डर्स पे। वैसे तो बीच में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं। दैट इज योर होमवर्क कि आप अपने कानों को, अपने फेस को, अपने नेक को, है ना, आप खुद से 5 5 6 6 10 10 ग्रैटिट्यूड्स भी लिख सकते हो। जो ग्रैटिट्यूड्स आपने, अगर आपके अक्सर कंधों में बड़ा दर्द रहता है, हाय, मैं तो, आपको लग रहा है कि आपने बहुत काम कर लिया है, आपने बहुत मेहनत कर ली है, इसलिए आपके कंधों में दर्द रहता है ना। हम लोग अपने बच्चों को अक्सर ऐसी कंप्लेन्स कर देते हैं, तुम्हारा काम कर करके घिस गई हूं मैं। मेंस लोग बोलते हैं, अरे इतना हार्ड वर्क कर करके मैं परेशान हो गया हूँ, देखो मेरे कंधों में कितना दर्द रहता है, देखो मेरी बैक में कितना दर्द रहता है। वो दर्द काम करने से नहीं है, वो दर्द इसलिए है क्योंकि आपने अपने कंधों को, अपनी बैक को, अपने लेग्स को, हैंड्स को कभी थैंक यू नहीं बोला। मेरा सबसे बड़ा आजमाया हुआ एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ना मेरे जो एंकल होता है ना हमारा, क्या होता है यार वो, जॉइंट जो होता है फुट का और लेग का, उसको एंकल बोलते हैं। तो उसमें ना एक ब्रेकडाउन आ गया, मतलब हल्का सा मेरा पैर ऐसे टेढ़ा हुआ था, और वो बहुत हल्का था, मतलब मुझे नहीं लगा था उससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार, अरे भगवान का फोन चल रहा है मेरा। एक काम करते हैं अभी ना, आज मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज है, बार बार आ जा रही है, इसमें मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और इससे ना माइंड बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है।
So what we can do is, I have told you how to write gratitude for your health. So let me write in a chat box. Please, please write gratitudes. अपनी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स को आप अलग अलग तरीके से ग्रैटिट्यूड लिखें प्लीज.